I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Pani. Now we start the next topic of our 10th class, chapter 15, our environment. So next we discuss the question answer of the previous topic. What are the topic level? Give an example of food chain and state the difference between topic level in it. Okay, you know about the topic level. Okay, the different stages in which organisms are lived and they are dependent on each other for their food. Okay, these are known as trophic level. तो आपने ट्रॉपिक लेवल देखे थे कितने होते हैं. फर्स्ट इज क्या था, प्रोड्यूसर था, उससे नेक्स्ट क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर आ रहे थे. तो दीज आर द ट्रॉपिक लेवल्स. ओके, तो आपने कोई फूड चेन का एग्जांपल देना. फूड चेन आपको पता है क्या होती है. इट इज द सीरीज in which one organism depend on another. Okay, here the simplest food chain is the deer depend on plant for their food and tiger is depend on deer for their food. Okay, so these are the simple food chain. Okay, these are the questions. Next question is, what is the role of decomposers in the ecosystem? क्या role है decomposer का? Okay, you know about very well, because decomposers are utilize the waste present in environment by eating them and convert the complex organic substance into simple inorganic substance. Okay, in this way there is the no pollution create in their environment. So now the next topic is, how do our activities affect the environment? कैसे हमारी activity environment को affect करती है. We are an integral part of the environment. हम environment के integral part हैं. Change in the environment affect us and our activity change the environment around us. और बोला हम कुछ भी करते हैं तो उनकी एक्टिविटी से हमारे environment को इफेक्ट पड़ता है. We have already seen in class 9th how our activities pollute the environment. आपने क्लास 9th में ये पढ़ा था ना कि कैसे आपकी एक्टिविटी से environment problems होते हैं. In this chapter we shall be looking at two of the environment problems in details, that is the depletion of ozone layer and waste disposal. तो इस chapter के अंदर हम दो mainly environment problems के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है depletion of the ozone layer. ozone layer कैसे डिप्लेट होती है, and waste डिस्पोजल, और वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, कि हमने वेस्ट को कैसे फेंकना चाहिए. ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड. ओके, ओजोन लेयर क्या है और ये कैसे डिप्लेट होती है. ओजोन इज molecule formed by 3 atoms of the oxygen. ओके, जब हम 3 ऑक्सीजन के एटम को आपस में कंबाइन करते हैं तो ओजोन बनती है. while O2 which we normally refer to as oxygen, O2 तो हमें आपको पता ही ऑक्सीजन है, is essential for all the aerobic form of the life. ओके, और जो ऑक्सीजन है सभी के लिए जरूरी है. ओके, ओजोन इज ए डेडली पॉइजनस. ओजोन जो है एक तरह की क्या है, पॉइजन है. पॉइजन आपको पता है जहर है. बोला ओजोन वहां पर तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है क्योंकि ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है. बट अगर वो गैस ओजोन को आप इनहेल कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक गैस भी है. ओके, however at the higher level at the atmosphere ozone perform an essential function. देखो ऊपर हाई लेवल पे तो वो इतना अच्छा काम कर रही है, बट अगर नीचे आ जाए ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे ओजोन तो हम सारे मर जाएंगे. इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. ये हमारे अर्थ को एक शील्ड की तरह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. This radiation is highly damaging to organism. और ये जो रेडिएशंस है बहुत डैमेजिंग है ऑर्गेनिज्म के लिए. फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स. और ये स्किन कैंसर का भी रीजन बनती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर. ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. बोला ओजोन बनती कैसे है. Ozone at high level of atmosphere is product of the UV radiation acting on oxygen molecule. अब देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर जब UV रेस पड़ती है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन के नेसेंट मॉलिक्यूल, नेसेंट का मतलब होता है अकेले एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. हायर एनर्जी UV रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन. ओके,
कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को O2 को स्प्लिट कर देती है, कौन, यूवी रेज इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन के एटम फ्री हो जाते हैं। These atoms then combine with molecule oxygen to form a zone, और ये जो एटम है वो क्या कहते हैं, मोलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ते हैं तो ओजोन बनता है। ओके, O2 है, O2 के ऊपर यूवी रेज डाली और O प्लस O में डिवाइड हो गया। अब O जब एक दूसरी ऑक्सीजन के एटम के साथ मोलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो O3 ओजोन बन जाएगा। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s। उन्होंने बोला ओजोन की मात्रा बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रही है, बहुत ज्यादा कम हो रही है। The decrease has been linked to synthetic chemical like chlorofluorocarbons। और ये जो कम होनी है ओजोन की मात्रा वो सीधा जुड़ी हुई है किससे, केमिकल से। कौन से केमिकल से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। मीन टू से जितना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा उतनी ज्यादा जो ओजोन है वो कम होती जाएगी। विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, जिसको हम रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एसी एयर कंडीशनर के अंदर यूज करते हैं। In 1987, the United Nations Environment Program (UNEP) succeed in forging an agreement to freeze CFC production at 1986 level। और बोला है कि 1987 के अंदर क्या किया गया, एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके अंदर सारे यूनाइटेड नेशंस को क्या बोला गया कि CFC की मात्रा कम करो। रेफ्रिजरेटर के अंदर CFC की मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा, ओजोन डिप्लेशन से हम बच जाएंगे। ओके, तो ओजोन डिप्लेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर ओजोन नहीं रहेगी तो हमें स्किन कैंसर का खतरा रहेगा। ओके, तो और भी बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। तो ओजोन जो लेयर है एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो एक्टिविटी 15.6, फाइंड out from the library, internet or newspaper report which chemical are responsible for depletion of ozone layer। लाइब्रेरी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर से अच्छी तरह देखो कि कौन सा केमिकल ओजोन लेयर की डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Find out if the regulation put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer। Have the size of the hole in the ozone layer changed in recent year। मैंने बोला हमने क्या किया, रेगुलेशन तो कर दिया कि हमने CFC की मात्रा कम की, क्या दोबारा वहां पे ओजोन लेयर जो ओजोन होल बना था क्या वो दोबारा रिपेयर होना शुरू हो गया, क्या वो ओजोन लेयर दोबारा सही होना शुरू हो गई है। तो ये देखो, मीन टू से दैट आप इंटरनेट का यूज तो करते हो बट उस इंटरनेट का यूज अपने फायदे के लिए करो, उस इंटरनेट से आप अच्छी चीजें फाइंड करो। ये देखो कि ओजोन लेयर है पहले कितनी डेप्लेट थी, कितना बड़ा होल था उसके ऊपर, अब कितना बड़ा होल है। अब वो होल छोटा हुआ है जब बड़ा हुआ है, और वो होल हुआ कहाँ पे है, ये बातें अपने माइंड के अंदर स्टोर करो। ओके, तो ऐसी बातें इंटरनेट के ऊपर ज्यादा सर्च किया करो। आप फोन चलाते भी हो तो ऐसी बातों से एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इसका आपको ही फायदा होगा, और एक आपका जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये बातें आएंगी। अगर आप ये बातें उनके अंदर ऐड करोगे तो और भी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, तो आज हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक आपने क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है। ओके, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने ओजोन की बात की। ओके, नेक्स्ट हम वेस्ट डिस्पोजल की कल बात करेंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपने ये सारा चैप्टर जितना हमने किया अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, तो आपने क्या करना है, एक तो ये चैप्टर आज पढ़ना है, और एक जो हमारा पिछला वर्क है जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड मैग्नेटिज्म, वो वाला चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज करना है, और उसकी जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर थे आपकी नोटबुक के फेयर नोटबुक के ऊपर लिखे होने चाहिए। तो आज का आपका यही वर्क है। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।